Good morning and Jai Hind students. Continuing with chapter number 1, Nature and Significance of Management. So, we are done with the functions of management, right? What we have studied in the last lecture was coordination. ठीक है, सारे functions of management हमने पढ़े. There are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, apart from that there is a separate function of management, that is coordination, and without coordination anybody, anyone would not be able to achieve the organizational objective. ठीक है, we have already studied the characteristics of the coordination, right? That coordination integrates group efforts. How coordination integrates group efforts? It's because it is an orderly arrangement. It is an orderly arrangement of the effort of all department working in the organization. जितने भी organization में जितने भी department हैं उन सबका मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है. Department कौन कौन से होते हैं किसी company में, किसी organization में? Production, Sales, Finance and HR department. ठीक है. Then comes coordination leads to unity of action. Means it is concerted action by all department. जैसे I have given you an example of musical orchestra, a group of musicians playing together. Why? To produce the desired result. Unity of action. उन्हें पता होना चाहिए we are working toward a goal, a common purpose. Right? Coordination is a continuous process. बेटा management क्या, घर क्या, everywhere we do require management. ठीक है, और हर जगह we require coordination because without coordination we cannot do anything. ठीक है, so that is why coordination is a continuous process because this cycle never ends. The need of coordination is always felt so long as the organization is engaged in productive operations. Okay, why is it pervasive? Abhi just now I have told you that it is present everywhere. It is needed in all department and at all level of management. Business firm हो, non-business activities हो, आपका घर हो, ठीक है, कोई organization, school, colleges, club, restaurants, everywhere there is management and coordination. If coordination is not there, everything is useless then. Right? Okay. Next was coordination is the responsibility of all managers. It is not the responsibility of only top level of management. It is the responsibility of top level of management, middle level managers and operational level managers. Right? Coordination is a deliberate activity. It is a deliberate activity. Why? Because it is done with a purpose. Pre-planned होती है ये. ठीक है, जानबूझ कर मैनेजर्स क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को मैनेज करते हैं. लाइक एवरी मैनेजर हैज़ टू टेक डेलिबरेट एक्शन टू अचीव कोऑर्डिनेशन. उनके डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सो दैट इज़ वाई मैनेजर यूज टू टेक द इनिशिएटिव. एडिक्वेट मेजर्स हैव टू बी टेकन टू अचीव कोऑर्डिनेशन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट? अच्छा, what we have already studied the difference between the coordination and the term cooperation, right? So today we'll be continue with the coordination. So the today's topic is coordination as the essence of management. As I have already told you that it is a separate function of management as well as it is the essence of management, means essential quality of management. Right? See, I have drawn a picture over here showing the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling, and in center I have written coordination. What is this? Coordination means coordination as the essence of management, the essential quality of management. ठीक है बेटा. अब how coordination is such an important activity that it has been called the essence of management. ठीक है, एसेंशियल क्वालिटी है ये. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन थ्रू बेसिक फंक्शंस. जो कि क्या हैं वो बेसिक फंक्शंस?
now you all are aware about the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. हाँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फेट का, यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ फेट इन योर स्कूल. उसके लिए यू नीड टू प्लान नंबर ऑफ स्टॉल्स, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी स्टॉल्स में. लेट्स सपोज 10 स्टॉल्स विल बी देयर, तो 2 members फॉर ईच स्टॉल यू नीडेड. Then how many number of people do you require for the swings and slides, for the food court, right? For the one who look after the electricity. ठीक है, तो इसके लिए मतलब you are here planning, then you are organizing the things, you are organizing the resources. but क्या फ़ायदा उसका resources को organize करने का अगर आपकी टीम में coordination ही नहीं है, right? अगर टीम में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आपके पास ऐसा स्टाफ है जो आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए ही तैयार नहीं है, तो हाउ कैन यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द फेट. यू कैन नॉट अचीव दैट ऑब्जेक्टिव इफ कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन इज एन एक्सरसाइज इन कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग. Planning seeks to achieve coordination between the interdependent department of the organization. Let me tell you how. See, when any of the departments start planning, तो वो क्या plan करता है? अपना budget. They plan the budget. They plan the procedure. What could be the procedure? Policies. Right? क्या प्लान करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? प्लान करता है बजट. भाई आप फेट ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हो कि आपका बजट है, आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस की ज़रूरत पड़ेगी आपको उसके लिए. व्हाट कुड बी द प्रोसीजर? हाँ, क्या प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे उसमें, किस तरह से काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप. व्हाट कुड बी दी स्टेप फॉर दैट. पॉलिसीज़ क्या होंगी? जैसे अभी आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल पॉलिसीज़ में कि हमारी कंपनी की पॉलिसी, हम क्रेडिट पे कुछ भी सामान नहीं देंगे और ना ही लेंगे. ठीक है, तो ये सब कुछ प्लान करना होता है पहले से, राइट? ओके. एंड मेथड्स एज वेल. व्हाट कुड बी दी मेथड्स? तो ये सब कुछ प्लानिंग होती है पहले से. टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग, द बजट, द प्रोसीजर, द पॉलिसीज, द मेथड्स फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Managers at all levels are concerned with achieving coordination while performing the function of planning, organizing, staffing, directing and controlling. I'll show you a clear picture of this here. Coordination as the essence of management. The 5 functions are here. The managers at all levels are concerned with achieving coordination while performing the functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Right? Like suppose planning कर रहे हैं managers, top level of management, तो वो plan करेंगे budget क्या होगा हमारा, procedure क्या होगा, हम क्या methods apply कर सकते हैं, what could be the policies for the betterment of the organization. ये सब कुछ पहले से planned होता है, pre-planned होता है. बट इसमें भी नंबर ऑफ पीपल सिट ऑल टुगेदर, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEOs, जनरल मैनेजर्स. अगर उन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई अपना बजट बताएगा, कोई अपना प्रोसीजर बताएगा, कोई अपनी पॉलिसीज़ बताएगा, कोई अपने मेथड्स बताएगा. यू नो, दे मस्ट बी अवेयर दे आर वर्किंग टुवर्ड अ कॉमन पर्पस, राइट? सो कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर बिटवीन देम. ऑल राइट. Okay, so we can say that coordination as the essence of management. क्योंकि planning में systematic planning of work, and allied aspect from top to bottom of the organization is must. Organizing में systematic division of work होना चाहिए among individual and department. आपने plan कर लिया आपको fete organize करना है, कितने number of stalls होंगे, किस किस को क्या work दिया जाएगा, ठीक है, स्विंग्स और स्लाइड्स पे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करेगा, स्टाफिंग, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. ठीक है, अगर आपने ऐसे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी स्विंग और स्लाइड को मैनेज करने के लिए जो कि
who don't bother much because swings और slides पे ज़्यादातर बच्चे enjoy करते हैं और हमें एक ऐसे person की चाहिए इस पर we need to recruit a kind of person who is more responsible, who can look after the children carefully. हाँ, और आपने कोई ऐसा point कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा लापरवाह है, so what will happen? Would you be able to achieve the objective? No, right? Okay, then comes directing, means you planned each and everything, you have organized the resources, you do the staffing. Abhi you need to direct. You can see this picture here. Abhi you need to, direct, means free flow of information. आपका क्या purpose है, आप इन लोगों को समझाओगे कि I want this to be achieved. Sound leadership must be there. ऐसा नहीं होना चाहिए. Leadership means again I am telling you कि हम तो नेता हैं, तो हमें लीडरशिप करनी है, हम वी आर दी अथॉरिटी, वी हैव दी अथॉरिटी, हमारे पास अथॉरिटी है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. आप अपना पर्पस उन्हें समझाओगे, उन्हें इन्फ्लुएंस करोगे. एंड सुटेबल इंसेंटिव्स फॉर गुड परफॉर्मेंस. इफ समवन इज परफॉर्मिंग नाइसली, सो यू कैन प्रोवाइड देम दी सुटेबल इंसेंटिव्स ऑल्सो. ओके, देन कम्स कंट्रोलिंग, मीन्स आप जैसा चाहते थे आपका काम ऐसा हुआ. वुड यू बी एबल टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट नाउ? Control of activities through personal observation and other techniques. Am I clear? Okay, come to the point. Another thing is the need and importance of coordination. बेटा coordination की ज़रूरत क्यों है? Though it is already clear to you, इस पूरे में हमने ये पढ़ा है कि yes, coordination is the essence of management. ये बहुत important है. It's because without coordination we cannot achieve the organization objective. हर डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने अपने बारे में सोचेगा, तो अपने बारे में सोच रहा है, अपने पर्सनल मोटिव के बारे में सोच रहा है, बट दे नीड टू थिंक अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. फॉर दैट दे नीड टू वर्क ऑल टुगेदर. एक साथ मिलकर उन्हें काम करना होगा. ठीक है, सो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? As I have already given an example of orchestra, an orchestra conductor who direct the activities of the orchestra party in such a way, इस तरह से orchestra party की activities को direct करता है एक orchestra conductor, that it produce harmony in music. सभी का, उस band का सभी के instruments एक harmony produce करें. ठीक है. As a coordinator, the manager perform the function of securing and maintaining unified action. अगर आप कोऑर्डिनेटर हो तो एज अ कोऑर्डिनेटर द मैनेजर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिक्योरिंग. सब डिपार्टमेंट्स में मिलकर काम होना चाहिए, राइट? द मैनेजर नीड टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप इन सच अ मैनर दैट इट ब्रिंग्स अबाउट हार्मोनियस रिलेशनशिप. एकता बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा आई हैव शोड यू दिस हियर. हर डिपार्टमेंट, वैसे दो एवरी डिपार्टमेंट इज सेपरेट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, बट दे ऑल आर वर्किंग ऑल टुगेदर टुवर्ड अ कॉमन पर्पस, राइट? So there are some advantages. Let's read it one by one. The very first one is coordination की, yes of course advantages तो होंगी, because it integrate the activities of functional department. functional department आपका production department, आपका sales department, आपका HR department, आपका finance department. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फिनेंस के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए, और इन सब की एक्टिविटी are guided towards the organizational objective through the process of coordination only. Better result. The second point is better result. Yes, of course. अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे, किसी तरह का confusion नहीं होगा. Confusion नहीं होगा, duplication of efforts नहीं होगा. अगर सब मिलकर काम कर रहे हैं, let's suppose एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 4 लोगों को, तो उन लोग 4 लोगों में अगर मान लो उन लोगों को पता है कि yes, our goal, our objective is to achieve the organizational goal, और अदरवाइज what they can do, वो सब अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएंगे. एक ही काम को 4 लोग एक ही तरीके से कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. कोऑर्डिनेशन है कि भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम डिवीजन हो गया, बांट लिया उस काम को. ठीक है, सबने मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो टाइम और एनर्जी भी सेव हो रही है, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्रिएटिव तरीके से काम हो रहा है. किसी के माइंड में कुछ अच्छा क्रिएटिव है, दूसरे के माइंड में कुछ अच्छा क्रिएटिव है, थर्ड पर्सन उन दोनों की हेल्प से कुछ ज़्यादा बेटर कर पा रहा है ना.
तो मतलब ड्यूप्लीकेशन नहीं हो रहा है काम का, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, टाइम और एनर्जी सेव हो रही है आपकी. दिस रिजल्ट इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ बेटर रिजल्ट ऑफ कोर्स. ओके, देन कम्स यस इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. कोऑर्डिनेशन लीड्स टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे? अवॉइडिंग डिलेज. ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम आप करो. ये दिस इज़ नॉट माई जॉब, दिस इज़ योर जॉब. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिले हो गया काम, वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का. तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, इसे तो मैं इस तरीके से कर सकता था. तो कंपनी के तो ये रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं. और ऑफ कोर्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. दो लोग एक ही काम को कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, डिले हो रहा है काम में, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है. राइट. देन कम्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलिस्ट. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में बेटा दे जनरली एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट for diverse field for better result. Their effort needs to be integrated if the service of such expert are to be utilized fully. देखो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उन्हें एम्प्लॉय करने होते हैं स्पेशलिस्ट डाइवर्स फील्ड के लिए. लाइक सपोज कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन परचेज की है मैंने फैब्रिक बनाने के लिए, और वो ख़राब हो गई है. सुपरवाइज़र कहेगा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव द नॉलेज, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा है और बाहर से किसी इंजीनियर को बुलाया गया है, उस स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है. अब मैं सुपरवाइज़र उस स्पेशलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, वो बोलेगा यार आपका तरीका नहीं है सही, इससे तो हमारी मशीन लंबे टाइम के लिए नहीं चलेगी. काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. सो इफ़ वी वांट द बेटर यूटिलाइजेशन फ्रॉम द स्पेशलिस्ट वी नीड टू कोऑर्डिनेट. एवरीबडी नीड्स टू कोऑर्डिनेट. मीटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस. कौन से चेंजेस होते हैं? टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो अब हो रहा है कोरोना की वजह से चेंजेस, पॉलिटिकल कितने चेंजेस हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ठप हो गई है. ठीक है, बिल्कुल ख़राब ख़त्म होती जा रही है. एनवायरनमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस आर चेंजिंग रैपिडली. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ अभी भी आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हो ना, हम सब मिलकर देश के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. वी आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग. वी हैव लर्न्ड अ न्यू टर्म दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग. हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है. ओके, द स्कूल ऑलमोस्ट एवरी स्कूल हैव स्टार्टेड दी ऑनलाइन क्लासेस. टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप तक कैसे पहुँच पाएंगे. हम ये कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो आप तक कैसे पहुँच पाएंगे. आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे. ठीक है, how would you be able to achieve the knowledge from the teachers if you will not coordinate. When the teacher, everybody in the school is taking initiative and you will not coordinate, how we all together will accomplish, will achieve the common purpose, that is to impart the quality education to all of you. Right बच्चे? So this was all about the advantages of coordination. Yes, of course, there are the advantages of coordination and these are the points. Right? Now comes the last topic of this chapter, that is chapter number 1, and the topic is management in the 21st century. अगर हम आज की बात करें, see उससे पहले I wanted to show you a picture. See, यहाँ पर ना कोऑर्डिनेशन नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में. सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज शोन इन हियर इन दिस पिक्चर. देखो, फिनेंस डिपार्टमेंट, द पर्सन इज सिटिंग आइडल, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. इसके पास कोई खबर ही नहीं आ रही है, इसको कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सेल्स इज़ डिक्लाइनिंग. इट्स बिकॉज द पर्सन इज़ वेरी लेज़ी. वो चाहता है कि लोग उसके पास आएँ, वो कोई इनिशिएटिव खुद की तरफ से नहीं लेना चाहता है. हाँ, पाइल ऑफ बुक्स आर हियर. तो ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर हियर. यहाँ शिपमेंट नहीं जा पा रही है किसी वजह से, सामान नहीं पहुँच पा रहा है मार्केट तक. नो बडी इज़ लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स, दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे आर ओनली बॉदरिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट. वो भी एक लोग काम नहीं, अच्छा देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं. सो दैट इज़ वाई द सिचुएशन इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस. हियर देखो, सी लुक हियर, आउट ऑफ स्टॉक, रिसोर्सेज नहीं है अब इनके पास, इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक. ठीक है, बिकॉज दे पीपल आर ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स, नॉट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल और ऑब्जेक्टिव, जो इनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
For that, they need to coordinate with each other. If they will not coordinate with each other, they would not be able to achieve the organization objective. Right? Is the picture is clear to everybody? Okay. So students, now come to the last topic, that is management in the 21st century. इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम पढ़ेंगे emerging challenges of management. देखो, मैनेजमेंट में चेंजेस आते रहते हैं. वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग ड्रास्टिकली. कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. आज आपने देखा था कोरोना की वजह से इस तरह से भी हो जाएगा. आप सोच सकते थे? कभी हमने सोचा था? सब लोग घर में बैठे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, टेक्नोलॉजी में चेंज आएंगे, बुक से हम लोग क्लासरूम में बैठकर फेस टू फेस इंटरेक्ट करके ना पढ़कर इस तरह ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन इंटरेक्शंस होंगे. नो तो चेंजेस इसी तरह बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते हैं. वो पॉलिटिकल चेंज हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजी के बदल जाने से हो चेंजेस. सो द इम्पॉसिबल थिंग्स ऑफ येस्टरडे हैव बिकम पॉसिबल टुडे, and the impossible things of today will definitely become possible tomorrow. Right? So ऐसा नहीं है, हमें सोच के चलना है. We all together will coordinate with the government, तो हम इस कोरोना को भी हरा देंगे. Right? Okay, that is why it is said that change is the only permanent aspect of nature. Change is the only permanent aspect of nature. जो concept था ना self sufficient nation का, पहले ये था सेल्फ सफिशिएंट नेशन, जिसमें हम सोचते थे, हमें एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होता था इन वंस रिसोर्स. हमारे पास बहुत कुछ है, वी आर एबल टू सप्लाई ओन्स नीड विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस. बाहर वालों की हमें ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं है अब. इट इज़ लूजिंग इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज़ एमर्जिंग, जिसमें क्या होता है, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड व्हेन थॉट ऑफ बीइंग क्लोज कनेक्टेड बाय मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, कि भाई सब लोग मिलकर काम करेंगे. आपके पास कुछ अच्छा है तो आप हमें बताओ, ट्रेड करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे. हमें नहीं सोचना है सेल्फ सफिशिएंट हमारे पास सब कुछ है. ऐसा नहीं, ये पहले था चीज़. नाउ द टर्म हैज़ टोटली चेंज्ड. दिस आई एम टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. राइट? सो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बाउंड टू कॉप अप विद द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ के चेंज होने पर हो, टेक्निक्स के चेंज होने पर हो. चैलेंजेस तो फेस करने होंगे. अभी भी आप ये चैलेंज, कोरोना चैलेंज फेस कर रहे हो ना घर में बैठकर. काम नहीं रुक रहा है कोई भी. यू आर परचेजिंग एवरीथिंग, बेसिक नेसेसिटीज़ तो एटलीस्ट यू आर परचेजिंग, यू आर बाइंग. राइट? और पढ़ाई भी हो रही है साथ में. एडेप्ट कर लिया आपने, ये जो चेंज आया है आप एडजस्ट हो गए हो इसके साथ अभी फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, अभी के लिए. राइट? Okay, so a manager or you is faced with the following challenges. कोई भी हो, किस तरह के challenges हो सकते हैं? The very first one is changing need and expectation of customers. कब पता नहीं बदल जाए need और expectation of customer. आज के टाइम पे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है सिवाय बेसिक नेसेसिटीज़. सिर्फ खाने के लिए मिलता रहे, ठीक है, हमें कोई कार की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बाहर जाने के लिए. हाँ, हमें और किसी चीज़ की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती रहे. एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं. ये चेंज ही तो हो रहा है एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से, और हम उसमें एडजस्ट हो गए हैं. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आप कुछ बना रहे हो, मार्केट में कुछ नया आ गया है, चेंजिंग नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स. इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में चेंजेस हो जाना, लीडिंग टू टफ कॉम्पिटिशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से. चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कर, येस, अब इंक्रीज एजुकेशनल लेवल की वजह से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं. राइजिंग शेयर ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स, काम की जगह पर विमेंस का शेयर बढ़ गया है. इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स. रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसके साथ में कार भी, मर्सिडीज़ चाहिए. ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं लोगों को. ठीक है, मतलब चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ वर्कर्स बदल रहा है. मोटिवेशन चाहिए उन्हें अप्रेजल चाहिए. चेंजिंग टेक्नोलॉजी, येस ऑफ कोर्स, टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ जाती है. प्रेजेंट स्किल्स और टेक्निक्स की अगर हम बात करें, लीडिंग टू एब्सोलेंस ऑफ प्रेजेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स. नया नया चेंज आता रहता है कुछ कुछ. अभी आप डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ नहीं पढ़ रहे हो क्लासरूम में बैठकर, यू आर स्टार्टिंग ऑनलाइन हियर एंड एक्चुअली यू आर. राइट? नेक्स्ट इज चेंजिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड और सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड.
आज देखो कितना बड़ा चेंज आया है, हम लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, सब कुछ ही ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, बट एक्चुअली वी आर सिटिंग, वी आर होपिंग फॉर द पॉजिटिव, राइट। हमने अडेप्ट कर लिया इस सिचुएशन को, वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वी आर डूइंग व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग टू अस। यही तो सारे चेंजेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं एक्चुअली, मैनेजर्स के पास हैं जो अब आपके पास भी हैं। Okay, so dear students, the chapter is finished today. That is chapter number 1, nature and significance of management. Now I will be providing you some questions, some case studies, which you all are supposed to do in your BST notebook. ठीक है, I'll give you few case studies related to chapter number 1, that is nature and significance of management. And you all are supposed to do it in your notebook. Okay, I am sending you the pictures of those case studies in the next video. Thank you.